Moving on to our next speaker, Mr. Brijesh Ji. Brijesh Ji is the Deputy General Manager of Community Development for Ambuja Cement. He has looked after programs for water resource management, sanitation programs, and have several partnerships. He's been in Ambuja Cement for more than 10 years. Brijesh Ji, request you to take the floor and you can share your screen for the presentation and introduce yourself. Thank you very much. This screen is visible. Hello. Hello. Yes, Brijesh Ji, you are completely audible. Thank you. And my screen is visible. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Brijesh Ji. Any students has any question can share their questions on Q&A platform. Thank you, Brijesh Ji. Please, all is well. So thanks, Vivek, and especially Swati Spento Private Limited and Sustainable Entrepreneurship Collective Group for organizing this actually seminar on this important issue, that is the water, for creating awareness among student or industry people. And also thanks to give this opportunity to me to share my own thoughts or Ambuja Cement Foundation's initiatives, especially in traditional revival of traditional water sources. And thanks to Aniket ji to make my presentation easy, because what is the situation of water he explained very well, or even facts कि अभी हमारी क्या सिचुएशन है. एक्चुअली हम लोग सब ये सोचते हैं कि वाटर इज बहुत हमें बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, जिनको मिल रहा है वो लोगों का ऐसा सोच है, और वी हैव टू मच वाटर सो देयर इज नो इशू. बट रियलिटी ये है कि ये बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, फाइनाइट रिसोर्स है वाटर. सो वी रियलिटी इज द फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं. सैलिन कोस्टल एरिया है, बहुत पानी है, बट सैलाइन है. जैसा कि प्रीवियस प्रेजेंटेशन में बताया कि क्वालिटी ऑफ वाटर का कितना बड़ा इशू है. तो पानी है लेकिन क्वालिटी खराब. तो वो सब चीज़ों के कारण हमारे लिमिटेशन है. वी हैव सफिशिएंट रेनफॉल इन आवर कंट्री, बट देयर आर मैनी एडल्ट्स, जो जैसा कि शेयर किया अनिकेत जी ने, तो वो सब इशू के कारण वी हैव वाटर प्रॉब्लम एक्चुअली. तो एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा इस पर. ज़्यादातर उन्होंने कवर किया है प्रीवियस प्रेजेंटर में. तो बिफोर स्टार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन आई जस्ट मतलब शेयर के अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन क्या है. अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन एक फाउंडेशन है, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. उनका ये फाउंडेशन है जो जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग साइट है उनके आसपास में जो भी 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो भी इनिशिएटिव हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. वो लाइवलीहुड से रिलेटेड हैं, वाटर से रिलेटेड हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर से हैं, हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड हैं. तो ये जो भी इंटरवेंशन है सोशल डेवलपमेंट के, वो ये फाउंडेशन उनको इम्प्लीमेंट करता है वहाँ पे. और ये फाउंडेशन 1993 में स्टार्ट हुआ था फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, कोडीनार. And now we are working almost in 44 districts in 11 states, and we are covering about more than 2,000 villages actually. So this is the our organization. So our programs basically, as I mentioned, water source management, agro-based livelihood, community and health, sanitation, education, women empowerment. The program design is depend on the community need. We do the need assessment of the community. We understand their need when they and the situation there, and based on that we prepare community development initiatives. So these are our programs. So now I come to this water. So generally previous presenter has told क्या issue है. So यदि हम अपनी country का water profile देखें, so we have 2% only our land of total world area,
and 4% world's fresh water resources, whereas our population is 17% of world population. तो आप देख सकते हैं कि 4% पानी है हमारे पास फ्रेश वाटर और 17% हमारे पास लोग हैं। तो उसमें बैलेंस आप देख सकते हैं कितना डिसबैलेंस है। तो ये एक भी कारण है हमारे जो कैटल पॉपुलेशन है 15% है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ वाटर स्कैरसिटी का। आप ये ग्राफ में देख सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे वाटर का एक ग्राफ दिया है कि 94.47% अपना वाटर जो है वो पीने लायक नहीं है, सैलाइन है, सी वाटर है। वी हैव ओनली वेरी लेस वाटर एक्चुअली। आइस के रूप में 1.7% है, ग्राउंड वाटर 0.77% है एंड फ्रेश वाटर जो है 0.025%। ये वर्ल्ड लेवल फिगर। इंडिया का अपन देखेंगे एनुअल रेनफॉल, ये कॉर्नर में आपको दिख रहे होंगे, यूरोप है, यूएस है। तो हम इंडिया में देखा जाए तो हमारी जो टोटल वाटर रिसीव जो हम करते हैं वो ऑलमोस्ट यूएस और लगभग चाइना के बराबर है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम बड़ी है। हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि अनिकेत जी ने बोला था कि हमारा 80% फ्रेश वाटर गोज़ टू एग्रीकल्चर, जहाँ पर वाटर यूज इफिशिएंसी का एक अलग इशू है कि हमारी वाटर यूज इफिशिएंसी ओनली एवरेज इफिशिएंसी 36%। और बहुत सारे जो कैनाल कमांड एरिया हैं जहाँ पे कैनाल से पानी दिया जाता है वहाँ पे 8 और 10% ही है। तो ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 1951 में 5000 क्यूबिक मीटर के था, जो अभी 2011 के आसपास 1545 है और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2050 तक ऐसी सिचुएशन चलती रही। तो दिस अवेलेबिलिटी 1140 क्यूबिक मीटर पर पर्सन, विच इज वेरी लेस। मतलब वाटर स्कैरसिटी का सिचुएशन होगा यदि ऐसा होता है तो। अभी प्रेजेंटेशन में पहले बताया 21 सिटी हमारी जो हैं उनमें लगभग ग्राउंड वाटर खत्म है। तो ये सिचुएशन अभी है जिससे डरने की खैर जरूरत नहीं है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशन भी है। मैं बहुत ब्रीफ में बोलूँगा क्योंकि पहले बताया जा चुका है कि एक हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो उसको हमें पानी चाहिए। अभी जैसा कि बताया कि हमारे 84% हाउस होल्ड्स में अभी भी 24 आवर वाटर सप्लाई का सिचुएशन नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम लिया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत कि हर घर नल। दैट इज़ द वेरी मतलब बहुत ही बड़ा वो है टारगेट, जो क्योंकि हर घर नल तो हो सकता है लेकिन हर घर नल के अंदर पानी होना रियली बहुत बड़ा टारगेट है वो। लेकिन गवर्नमेंट ने लिया है तो अच्छी बात है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हमारा ग्राउंड वाटर का बढ़ रहा है, जिसके कारण यदि हम विलेजेज में देखें तो आज से 10 साल पहले जिन लोगों को कुएं का पानी मिल रहा था खेती करने के लिए, आज नहीं मिल रहा, क्योंकि जैसे-जैसे लेवल डाउन जा रहा है वैसे ही वैसे एक्सेसिबिलिटी कम होती जा रही है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक है, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता 600 फीट तक डीप बोर बनाने के लिए। तो वो 400 तक था, तब तक उसे पानी मिल रहा था, 600 हो गया, उसे पानी नहीं मिल रहा क्योंकि अब उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है। जैसे-जैसे और नीचे जाएगा और लोग उससे दूर होते जाएँगे। तो समाज के अंदर एक इनइक्वालिटी आएगी और वो इनइक्वालिटी आप जानते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगी, एक बड़ा सोशल इश्यू बनेगा। क्वालिटी का एक ऑलरेडी बताया जा चुका है कि क्वालिटी उस भी उससे इम्पैक्ट करेगी और सैलिनिटी का बढ़ रहा है क्योंकि कोस्टल एरिया में हम फ्रेश वाटर का पंपिंग कर रहे हैं। जैसे ही हम विथड्रॉ करते हैं तो सी वाटर एंटर करता है हमारे फ्रेश एक्यूफर को। सो दे दैट दोज एक्यूफर परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो एक बड़े है। लो वाटर यूज इफिशिएंसी जैसा कि हमने बताया कि अभी कमांड एरिया है जहाँ फुल पानी है, वहाँ लो वाटर यूज इफिशिएंसी 8 से लेके और एवरेज इन कंट्री का 36% है, व्हिच इज़ वेरी लो अक्रॉस द वर्ल्ड अपने यहाँ पे। तो अब दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है कि महिलाएँ हमारे यहाँ ग्रामीण एरिया में आप देखेंगे, राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे और भी एरिया हो, रिमोट में आप थोड़ा भी जाएँगे, इवन इन अर्बन एरिया, यदि आप जाते होंगे, स्कूल जाते हैं, यदि यहाँ पे बच्चे हैं, मेरे को पता है जैसे स्टूडेंट हैं, तो आप जाते होंगे, देखते होंगे अर्बन एरिया में थोड़ा-सा अपनी कॉलोनी से बाहर निकल के आप देखेंगे, स्लम में लोग पानी के लिए कितनी बड़ी लाइन लगा के रखते हैं।
और वो ज़्यादातर महिलाएँ होंगी, वो गर्ल्स होंगी, तो वो उनका टाइम भी जाता है पूरा, वो कोई और प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर पाते, बच्चों का स्कूल ड्रॉप आउट होता है। और एक अनुमान के हिसाब से राजस्थान में एक महिला जितना पानी के लिए ज़िंदगी भर चलती है, वो एक पृथ्वी के चक्कर लगाने के बराबर है। तो ये है हमारे यहाँ पानी का ग्रेविटी लेवल। क्लाइमेट चेंज वेरिएबिलिटी वो तो एक इश्यू है ही। तो सॉल्यूशंस क्या हैं? तो अभी प्रीवियस प्रेजेंटेशन में बताया गया कि देयर आर मेनी सॉल्यूशन, रेगुलेटरी हैं, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उस पे एक्शन लेने वाले हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। तो ये बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। मैं जो बात करूँगा वो ग्रामीण एरिया में, क्योंकि मेरा काम ज़्यादातर ग्रामीण एरिया में है। कम्युनिटी के अंदर जो हमने काम इनिशिएटिव लिए हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा। तो उनमें बेसिकली रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम है, जो हमारे पुराने पानी के साधन हुआ करते थे। आज से जब सरकारें भी नहीं थी, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, इवन जब हम स्वतंत्र थे, तब भी हमारे यहाँ पानी मैनेज करते थे लोग। तब कोई सरकारें नहीं थी, ना उसके लिए कोई था। तो लोग अपने गाँव का पानी खुद ही मैनेज करते थे। तो उनके कई सारे हर रीजन में ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम थे। उनके अपने ज्योग्राफी के हिसाब से, अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, सॉइल टाइप के हिसाब से, लोगों ने अपने हर क्षेत्र में, आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जाएँगे, आपको हर जगह पुराने पानी के सिस्टम दिखेंगे, चाहे वो तालाब हो, चाहे टाँका हो, चाहे बेरी हो। तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो टाइम के साथ अभी बहुत सारे डिफंक्ट भी हो गए, लेकिन स्टिल बहुत सारे अभी भी आप गाँव में जाएँगे, कि देखेंगे, आस-पास अपने देखेंगे, तो अभी भी बहुत सारे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफंक्ट पड़े हैं। बिकॉज़ 1972 के बाद इंडिया के अंदर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आया। मतलब हम 1972 से पहले हमारे यहाँ ट्यूबवेल नहीं थे, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। 72 के बाद आई। तो 72 से पहले भी हम पानी हमारे पास था, तो लोग सरफेस वाटर पे बहुत फ़ोकस कर रहे थे, तालाबों पे, पाम पॉन्ड्स पे, टाँके बना के, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे। तो वो जब ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आई, तो लोग सीधे ट्यूबवेल बना के और पानी उसमें चले गए, और हमने नेग्लेक्ट कर दिया अपने सरफेस वाटर सिस्टम को। इसलिए आपने सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि हमारी कंट्री में वी हार्वेस्ट ओनली 8% आवर रेनफॉल, जबकि हमारे पास पानी है। चेरापूंजी में आप जानते होंगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। वहाँ पे 9 महीने बरसात होती है। इसके बाद भी 3 महीने वाटर स्कैरसिटी की न्यूज़ आती है वहाँ से। तो ये हमारा कुल मिला के मिसमैनेजमेंट है कि हमने उसको, तो ये सॉल्यूशंस हैं कि हमें लोगों को वाटर लिटरेसी, जैसा अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अ, मेरे को थोड़ा-सा याद है कि किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? तो एक सबसे बड़ा रोल है, आज भी हमारे यहाँ वाटर लिटरेसी का अभाव है। हम पढ़े-लिखे तो हैं, लेकिन वी आर नॉट वाटर लिटरेट एक्चुअली। हम अपनी वाटर की, हमारी सेविंग हमारी, यदि हम देखा जाए तो ट्रेडिशनली सेविंग हमारे ब्लड में है। हम सेविंग बहुत करते हैं, पैसा हो, चाहे किसी भी चीज़ का हम कंज़र्वेटिव यूज़ करते हैं, स्पेशली इन रूरल एरिया। अर्बन एरियाज़ में अभी क्या है, थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कल्चर के साथ, तो वी आर आवर हमारा नेचर एक्सप्लॉइटेटिव होता जा रहा है। चाहे वो इंडिविजुअल हो, इवन इंडस्ट्री भी हो, तो हमें एक्सप्लॉइटेशन की तरफ जा रहे हैं, कंज़र्वेटिव की तरफ कम है। अब हमें ज़रूरत है, हमें अपने पुराना जो ट्रेडिशनल हमारे थॉट है, जो हमारे ब्लड में है, वाटर सेविंग हो, चाहे मनी सेविंग हो, चाहे जो ये कल्चर है हमारा, उस कल्चर की तरफ हमें जाना पड़ेगा कि अपने पानी को हमने, पुराने लोगों ने कैसे सहेजा था, वैसे ही हम अपने पानी को कैसे सहेजें। पहले लोगों के जो ट्रेडिशनल तालाब या भी होते थे, तो लोग उनकी जो भी रिलीजन है, अपनी पूजा करते थे, गंदा नहीं करते थे। अभी हम उसमें संकोच नहीं करते। यदि हम अपना घर का कुछ कचरा भी है, जाते हैं तो कोई तालाब के किनारे है तो वहाँ फेंक देते हैं, उसके ड्रेनेज में फेंक देते हैं। हमें बिल्कुल संकोच नहीं होता। हम अपना लिए हैं या चिप्स खाते हैं, चिप्स खा के हम प्लास्टिक फेंक देते हैं। हम ये संकोच बिल्कुल नहीं करते कि यदि हम इसको फेंकेंगे तो जो नाले में जाएगा, पानी को रोकेगा, ज़मीन में जाएगा, रिचार्ज को रोकेगा। ये बिल्कुल सेंसिटिविटी खत्म है। तो हमें वो वाटर लिटरेसी चाहिए। एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत बड़ा है, हुआ है, लेकिन हमें अभी वाटर लिटरेसी चाहिए। तो उसमें हम लोग बहुत जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत इसमें अपना योगदान दे सकते हैं।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज मेजर्स है, जैसा कि अभी उन्होंने स्लाइड में भी दिखाया था हमारे प्रीवियस प्रेजेंटेशन में। पार्टिसिपेशन है वाटर यूजर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड दिखाया था इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें फिजिकल एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट, इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्पॉन्सिबल पीपल, पार्टिसिपेशन ऑफ वाटर यूजर्स। हम केवल ये ना सोचें कि गवर्नमेंट का ही रोल है, एज ए सिटीजन हमारा क्या रोल है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो मैं बात करूंगा अपने प्रेजेंटेशन के बाद में। तो वो एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन मैं आज के प्रेजेंटेशन में, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादा है ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम पे, तो मैं अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने अपने रूरल एरियाज में ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम डिराइव किया है और उसके कैसे इम्पैक्ट है, मैं उन पर थोड़ा शेयर करूँ। चूँकि मेरे को पहले बताया गया था कि यहाँ पे स्टूडेंट भी होंगे, तो मैं उस हिसाब से कुछ 2 स्लाइड ये भी डाली हैं कि व्हाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत क्यों? जैसा कि मैं अभी चेरापूंजी का एग्जांपल आपको दिया। तो यदि आप ये ग्राफ देखेंगे तो वी रिसीव ओनली पूरे साल जो 365 दिन है, तो 99% हमारे क्या है, ड्राई। केवल हम 1% जो है टाइम, डेज हैं, रेनी डेज, वो हमारे यहाँ होते हैं। इसका मतलब ये है आवर्स में देखें तो 100 आवर्स की रेनफॉल अपने यहाँ होती है ऑन एन एवरेज कंट्री में, और हमें वो पानी चाहिए 8660 आवर्स के लिए। तो हमें क्या करना होगा, 100 आवर्स में जो रेनफॉल हो रही है, 100 आवर्स में तो वो यूज़ करनी है, लेकिन उसी 100 आवर्स की रेनफॉल को हमको जो बाकी के 8660 आवर्स हैं, उनके यूज़ के लिए रखना है। वो होता है सरफेस हार्वेस्टिंग हो सकती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है, क्योंकि वो भी एक स्टोरेज है। तो ग्राउंड वाटर है वो अपना एक स्टोरेज है, सेफ स्टोरेज है। यदि वो रिचार्ज होता है तो ग्राउंड में एक्वीफर है, उनमें स्टोर रहता है, तो हमें वो स्टोर कर, इसलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है। यदि हमारे यहाँ 12 महीने बरसात होती तो हमें हार्वेस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। 12 महीने हम अपने डायरेक्ट पानी मिलता रहता और अपना फसल होती रहती। तो ये इसलिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है। अब वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है, ब्रीफ में आप समझेंगे। एक कैचमेंट होता है, इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं, वन इज कैचमेंट, देन कैचमेंट में जो भी बारिश होती है, जो भी बरसात उस कैचमेंट में गिरती है, वो आपकी छत भी हो सकती है। छत के ऊपर जो भी बारिश होती है वो बह के कहीं आती है, उसे हम रन ऑफ बोलते हैं। और तीसरा होता है उस बरसात को, उसको कहीं स्टोर करके रखना। आप टाँके में कर सकते हैं, तालाब में कर सकते हैं, या नालों के ड्रेनेज के द्वारा जाता है तो अपने डैम में स्टोर होता है। तो ये 3 कंपोनेंट हैं उसके बेसिकली, कैचमेंट, रन ऑफ और स्टोरेज एरिया। तो अभी ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम, ये मैं ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम क्या होता है? ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम इसके लिए, जैसे कि मैंने बताया कि जब बहुत सालों पहले, इवन 1000 साल पहले की आप बात करें, तो इंडिया, भारत में, भारतवर्ष, इसको भारतवर्ष बोलते थे, वो उसका भी वर्षा से लिंक है। हम अपने पुराने डॉक्यूमेंट वगैरह में जाएँ तो भारत में सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे यहाँ सोने की चिड़ियाँ थी। इसका मतलब ये था कि हमारी कंट्री बहुत प्रॉस्परस थी। हमारे वाटर सोर्सेस बहुत ही हमारे जो रेनफॉल, हमारी कंट्री में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, हमारी कंट्री में जो लोगों का विज़डम था वाटर के प्रति, जो उन्होंने टेक्नोलॉजी अपनी डेवलप की थी ट्रेडिशनल, विलेज वाइज़, रीजन वाइज़, वो बहुत अच्छी थी, और हमारी प्रोडक्टिविटी उस समय बहुत हायर थी। तो हमारे जो हम प्रॉस्पर थे, और इसीलिए शायद तो ऐसा मानते हैं कि इसीलिए दूसरे लोगों को हमने आकर्षित किया कि हमारी कंट्री में आए, और वो लोग आए कोई बिजनेस के लिए, कोई लूट के लिए, जो भी है। तो वो एक बड़ा रीजन था वाटर मैनेजमेंट ऑन आवर कंट्री। अपने जो ग्रंथ हैं, इतिहास हैं, या पुरानी डॉक्यूमेंट्री हैं, वो उनमें एविडेंस ये मिलते हैं कि हमारे जो आज से 1000 साल या 500 साल पहले जो हमारे सिस्टम थे, वो बहुत ही इफेक्टिव, रीजन स्पेसिफिक, क्लाइमेट सेंसिटिव थे, जिनके कारण हमारे यहाँ प्रॉस्पेरिटी थी, और सोने की चिड़िया हम कहलाते थे। तो ये पुराना सिस्टम है, एक राजस्थान का मैंने दिखाया है। एक कैचमेंट होता है जैसे मैंने बताया, फिर एक सरफेस रन ऑफ के लिए एक ड्रेनेज होता है, नाला, एंड देन ये विलेज वाटर स्टोरेज पॉन्ड है पुराने। आज भी इन डिस्ट्रिक्ट नागौर, बीकानेर, जोधपुर,
स्टिल आज भी लोग इन तालाबों से पानी भर के ले जाते हैं और पीते हैं। लेकिन एक डिसिप्लिन है उनके यहाँ। कुछ विलेजेस में, मैक्सिमम विलेजेस में ये डिसिप्लिन टूट गया है, लेकिन बहुत विलेजेस ने आज भी बना रखा है। और बहुत सारी संस्थाएं, हमारे जैसे और भी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो लोगों को फिर से अवेयर कर रहे हैं कि ये सिस्टम को अभी भी जीवित रखो, क्योंकि दिस सिस्टम इज ओनली टू सेव आवर लाइफ इन फ्यूचर। तो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया का यहाँ मैनेजमेंट ऐसा होता है, जो गोचर एरिया है या जिनको हम सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं, वो एरिया है, वहाँ का जो पानी आता है, वहाँ एक सोशल फेंसिंग होती है कि वहाँ पे कोई भी टॉयलेट या लेट्रिन या गंदा पानी या गंदा कचरा नहीं डालेगा, क्योंकि वहाँ से जो पानी तालाब में आएगा वो गंदा होगा, क्योंकि ये पानी हम सब लोग पीते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम करके आज भी है। और ऐसे ही सिस्टम को हम लोगों ने जब काम किया था, यहाँ पे स्टार्ट किया था पाली और नागपुर में, हम लोगों ने ऐसे तालाब आइडेंटिफाई किए। हर गांव में 2 4 तालाब आपको मिलेंगे, जो कि मिट्टी से भरे पड़े हैं, कचड़े से भरे पड़े हैं, क्योंकि ट्यूबवेल से पानी पी रहे हैं, तो इनकी जरूरत नहीं समझते। तो कुछ विलेजेस में उन्होंने बचा कर रखे। ऐसे ही तालाबों को कम से कम 500 से 700 तालाब अभी तक अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन रिवाइव कर चुकी है। और इसी तरह से और भी बहुत सारी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो इस सिस्टम को फिर से रिवाइव कर रहे हैं। क्योंकि हमें अपने सरफेस, ये सिस्टम सरफेस वाटर स्टोरेज तो डायरेक्ट मिलता ही है, इनमें पानी भरा रहता है, तो धीरे धीरे रिचार्ज भी होता है, जो हमारे एक्यूफर को फिर से, जो हम ट्यूबवेल से खींच रहे हैं, उसको फिर से रिप्लेनिश करता है। तो ये एक सिस्टम है। आप देखेंगे प्रीवियस फोटो एंड पास्ट फोटो, इस तरह के सिल्ट जमा हो गया है, जैसा कि अनिकेत जी साहब ने बोला था कि बहुत सारे पॉन्ड को रिवाइव किया जा सकता है जहाँ पे सिल्ट भरा हुआ है, और वो सिल्ट बड़ी प्रोडक्टिव भी है बहुत रीजन में, और उसको एग्रीकल्चर लैंड में यूज करते हैं, तो उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये एक है। दूसरा है रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपने पहले की प्रेजेंटेशन में उन्होंने एक फोटो दिखाया था। ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, बहुत पुराना, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में था। आज भी यदि आप कभी उदयपुर घूमने आए हों, या जोधपुर गए हों, या जयपुर गए हों, और आपने जो पैलेस बने हैं वो जरूर घूमे होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा उन पैलेस में कितने हाइट पे बने हुए हैं, लेकिन कभी भी पहले वहाँ नीचे से पानी कभी नहीं गया। उनका पानी का अरेंजमेंट ऊपर ही होता था। वो सारा पानी, ये सिस्टम था टांके का, वो पूरा वहाँ छत का पानी, सरफेस का जो भी रेनफॉल होता था, दे कलेक्ट ऑल द वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक। अभी जी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कंक्रीट है, स्टोन है, तो हम इसके बनाते हैं, पहले वो कच्चे भी बनाते थे, पत्थर के भी बनाते थे। तो ये उनका सरफेस रन, जो कैचमेंट था वो सरफेस होता था, रूफ भी होते थे। अभी इन्हीं जो रूफ टाँके हैं, ये आज भी इफेक्टिव हैं उतने ही। बीच में लोगों ने भूल गए ट्यूबवेल और हैंडपंप आने के बाद, लेकिन अब ट्यूबवेल डिफेक्ट पड़े हैं, गर्मियों में सूख जाते हैं। पानी सप्लाई गवर्नमेंट की टूट गई, 5 दिन आई नहीं, तो लोग स्टिल इन्हीं पे डिपेंडेंसी। और इन्हीं स्ट्रक्चरों का क्या है कि एक स्ट्रक्चर, एक टाँके जनरली जो बने हैं इंडिविजुअल घर में, वो 10,000 से 15,000 लीटर के बीच की। 10 से 15,000 लीटर पानी यदि उन्होंने एक बार स्टोर कर लिया, तो 4 महीने बरसात के उनके निकल जाते हैं। बारिश होती रहती है, यूज होता है, भरता है, यूज होता है, भरता है। बाकी के 8 महीने दे यूज दिस स्टोर्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, और घर में खाना बनाने के लिए। 15,000 लीटर 4 से 5 परिवार के फैमिली के लिए, ये पीने के पानी के लिए सफिशिएंट। और जो जानवर हैं, कैटल हैं, उनके लिए वो तालाबों में चले जाते हैं। तो इस तरह से वो अपने पानी का मैनेजमेंट करते हैं। हम लोगों ने, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने भी अपने क्षेत्र में, खास करके राजस्थान में और कोस्टल एरिया गुजरात में, जहाँ पे सैलाइन वाटर है, वहाँ पे ये सारे कम से कम 10 से 12,000 स्ट्रक्चर लोगों को बनाए हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ इंसेंटिव दिया है, कुछ लोगों ने पैसा लगाया है अपना, और इस तरह के स्ट्रक्चर काफी बनाए। अभी हम वह सेम स्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ में, इवन हिमाचल, जहाँ बहुत रेनफॉल हर समय होती है, लेकिन वहाँ पे भी गर्मियों में देयर इज ए वाटर स्कैरसिटी, तो हम वहाँ पे भी पायलट बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पानी उन्होंने कभी टाँके का भरा हुआ पानी पिया नहीं। वो सोचते हैं ये तो बासा पानी है, हम तो दिन में पानी भर के रख देते हैं, दूसरे दिन ही उसे नहीं पीते, तो इसका कैसे पियेंगे। लेकिन हम धीरे धीरे वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, सालों हजारों साल पुरानी। रेगिस्तान में, आप मुंबई में होंगे मैक्सिमम लोग, मुंबई में बहुत बारिश होती है, लेकिन वहाँ पानी की भी समस्या है।
1000-1200 mm पानी होता है, लेकिन राजस्थान में जैसलमेर में आप देखेंगे ओनली 140 mm बारिश होती है एक साल में। यदि वो भी ये 140 mm में पूरा हो गया, दे आर हैप्पी कि हमारे 140 रेनफॉल आ गई, उनको पानी की साल भर कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी फसल अच्छी हो जाती है। और वहीं चेरापूंजी में जहाँ 1100-1200 1000 मिलीमीटर पानी हो रहा है, तो वहाँ वाटर स्कैर्सिटी है। तो ये मैनेजमेंट का ओनली फर्क है। तो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जो आज भी इफेक्टिव हैं। हम लोग इनको आज भी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और इनको आज भी रिवाइव कर रहे हैं। ये एक दूसरा प्रैक्टिस है दैट इज कॉल्ड खडिन। ये खडिन नाम दिया हुआ है जो जैसलमेर में इसको ऐसा बताते हैं, जो हिस्ट्री इसकी बताती है। पालीवाल ब्राह्मण होते थे, वो लोग अपने खेतों में पानी की फसल के लिए दे कंस्ट्रक्ट दीज बंड्स। ये कुछ नहीं है, बड़े बड़े एक डैम है, खेत में बड़ी मिट्टी की एक पाल बनाते हैं, अर्दन बंड बनाते हैं और रेनफॉल को स्टोर कर लेते हैं। इससे रिचार्ज भी होता है और वो पानी वो दूसरे खेतों में उससे इरिगेशन कर लेते हैं। और जब पानी सूख जाता है तो जो नमी रह जाती है, सॉइल मॉइस्चर, उसमें वो चना है या दूसरा कुछ ऐसी फसल कर लेते हैं। तो हमने इनको भी फिर से रिवाइव किया है। लोगों से फिर से कहा है कि भाई ये सिस्टम को आप फिर से करो, क्योंकि अभी भी रेनफॉल का प्रॉब्लम है। इरिगेशन डैम सब जगह नहीं बन सकते, सब जगह इरिगेटेड एरिया नहीं हो सकता। कितना भी हम कर लें, हमारी कंट्री में आज भी 20 से 25% इरिगेटेड एरिया है। रिमेनिंग 70% ऑफ एरिया इज स्टिल डिपेंड ऑन रेनफॉल। तो ये प्रैक्टिसेस हैं जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, हजारों साल पुरानी हैं, आज भी इफेक्टिव है। और ये प्रैक्टिसेस जो हैं, एक तो टोटली डिपेंड्स ऑन लोकल स्किल। इनके लिए हमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट नहीं करनी, ना सीमेंट इंपोर्ट करनी। ये लोकल मटेरियल, लोकल स्किल बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, हर एरिया में मिलेंगी। ये राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, हमने इसमें अभी मैं बताता हूँ महाराष्ट्र में भी किया हुआ है। ये इसका फोटो है एक, इसको खडन बोलते हैं। ये खेत में ऐसे पानी स्टोर कर लेते हैं, फिर नियर बाई फील्ड में यूज होता है। फिर इनके जो ट्यूबवेल हैं, ओपन वेल्स हैं, वो रिचार्ज होते हैं। और जब ये पानी सूख जाएगा तो इसी में फिर वो जो रेजिडुअल सोइल मॉइस्चर बचता है उसमें अपना एग्रीकल्चर कर लेते हैं। ये मैं बात कर रहा था कि महाराष्ट्र में, ये विदर्भ रीजन में ये तालाब थे बहुत पुराने, उनको माल गुजारी टैंक बोलते हैं। तो ये भी बड़े इफेक्टिव हैं। आज भी बहुत सारे ये डिफंक्ट हैं, लेकिन बहुत सारी एजेंसीज वहाँ काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी और इंडस्ट्री है वो भी काम कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट भी काम कर रही है। इन टैंक को फिर से रिवाइव कर रहे हैं, डिसिल्ट कर रहे हैं, बंड को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिससे कि जो रन ऑफ आता है उसको स्टोर किया जाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ा जाए, डायरेक्ट सरफेस वाटर स्टोरेज बढ़े। इससे कम जो लाइव स्टॉक है उस एरिया में इरिगेशन न हो सके तो कम से कम लाइव स्टॉक हो सके। और बड़े स्ट्रक्चर हैं तो इनसे टैंक से इरिगेशन भी होता है। तो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं और ये कोई इसमें बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती। देन ये हिमाचल में रेनफॉल एरिया, यहाँ पे ट्रेडिशनली क्या होता था कि पहाड़ियों से जो पानी आता था तो वो उसको डाइवर्ट करके और एक मिट्टी काट काट के चैनल बना के ले जाते थे डाउन स्ट्रीम में फॉर एग्रीकल्चर के। लेकिन धीरे धीरे रोड बनी, ये बने, तो इनका सब डिफेंड कर दिए। तो हम लोगों ने इनको फिर से, क्योंकि हम थोड़ा मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया है उसमें और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को लिया है, उनको फिर से रिवाइव कर रहे हैं इसी तरह से पक्के चैनल बना के और पक्के स्ट्रक्चर बना के। और ऊपर इनके जो स्प्रिंग्स हैं जिनसे पानी आता है, जो तो उनको रिवाइव कर रहे हैं वहाँ पे, जिससे कि सो यहाँ पर हम मिक्स्ड वो ले रहे हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस प्लस सम मॉडर्न ब्लेंडिंग, सम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न प्रैक्टिसेस, सो दैट क्योंकि वहाँ हाई रेनफॉल है तो उनकी स्ट्रेंथ थोड़ा होना जरूरी। तो ये उस रीजन में हम कर रहे हैं। ये भी बहुत पुरानी वो है, जैसे आप देखेंगे कांगड़ा वैली है सिस्टम, बताते हैं उस समय का ये इंट्रोड्यूस किया है, 2500-3000 साल पहले का। इसको कोहुल बोलते हैं हिमाचल में। सिमिलरली ये फार्म पॉन्ड है, अभी हम फार्म पॉन्ड बोलते नहीं, लेकिन एक खेत तालाब होते थे जो लोग पहले ये मानते थे कि हमारे जमीन का 1/6 हिस्सा पानी के लिए होना चाहिए। हमारी जितनी जमीन खेत है, यार हमारा खेत 6 बीघे है तो 1 बीघे जमीन हमें पानी के लिए देनी चाहिए, मतलब उस खेत के पानी को स्टोर करने की। ये कॉन्सेप्ट था हम लोगों का
ट्रेडिशनली, लेकिन बाद में लोगों को ज़मीन कम पड़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ट्यूबवेल से पानी मिलने लगा, तो लोगों ने इस प्रैक्टिस को खत्म किया, अपने वो प्लान किया और खेत बनाए और ट्यूबवेल से पानी दिया। लेकिन अब ट्यूबवेल में भी पानी नहीं है। तो ये फिर से हमें गवर्नमेंट भी अभी सब्सिडी दे रही है, ये फिर से हमको रिवाइव करने की ज़रूरत है और हम इस पे कर भी रहे हैं। हम कम से कम हज़ारों स्ट्रक्चर्स हमने लोगों को सपोर्ट किए हैं कि वो अपने खेत में ही पानी भरें। ये सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट ये है कि उनके जो ट्यूबवेल्स हैं या ओपन बोलते हैं, उनको रिचार्ज होता है। सेकंड है कि बरसात के दिनों में भी आजकल बारिश के बीच में भी ड्राई स्पेल आता है। देयर इज़ अ लॉन्ग गैप बिटवीन द 2 रेनफॉल, तो उस बीच में फसल सूखने लगती है, तो इस पानी से वो इरिगेट कर लेते हैं। सेकंड, बहुत सारी फसल वाटर सेंसिटिव है। ग्राउंड वाटर जैसे-जैसे डाउन जा रहा है, क्वालिटी खराब हो रही है। बहुत सारी फसल है, जैसे जीरा होता है राजस्थान, धनिया होता है, वो ऐसी सेंसिटिव फसल हैं कि वो यदि पानी देते हैं तो फसल का प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं रहता। तो वो लोग क्या करते हैं कि इस सरफेस वाटर को और ट्यूबवेल को मिक्स करके देते हैं, जिससे इसकी क्वालिटी एक बैलेंस हो जाए और वो फसल अच्छी हो। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये ये भी टेक्नोलॉजी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके लिए कोई बाहर से हमें कुछ इम्पोर्ट करना पड़े। सारा कुछ लोगों की स्किल के बेसिस पे है, केवल अर्धन वर्क है, मिट्टी का काम। थोड़ा बहुत इसके इनलेट आउटलेट बनाने के लिए पाइप चाहिए और रहता होगा और थोड़ा पत्थर वगैरह चाहिए रहता होगा। बाकी इट्स टोटली डिपेंड ऑन लोकल मटेरियल एंड पीपल स्किल। सबसे बड़ा एडवांटेज ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ का यही है। तो कुल मिला के ये कुछ स्ट्रक्चर थे जो मैंने रखे थे। इन सारे स्ट्रक्चर्स का हम लोगों ने जो काम किया है, उसका काफ़ी सारा इम्पैक्ट भी आया है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, चाहे विलेजेस में वाटर अवेलेबिलिटी का हो, वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ी है, पीने का पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ी है और इन सब का इम्पैक्ट कुल मिला के ये हुआ है कि वहाँ के उन लोगों के इनकम बढ़ी है तो उनका अपना उन्होंने एजुकेशन पे खर्च शुरू किया है, तो उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आया, तो ये सारे इम्पैक्ट्स आए। एक सबसे बड़ा विजिबल इम्पैक्ट ये है क्योंकि सीमेंट को पानी चाहिए और जहाँ-जहाँ सीमेंट प्लांट है वो रिमोट एरियाज़ में है। वहाँ पे यदि जो आस-पास के गाँव हैं वहाँ पे पीने के पानी की किल्लत आती है, तो पीपल कम टू द इंडस्ट्री कि हमें पानी पीने का चाहिए, आपने इंडस्ट्री लगाई है इसलिए हमारा पानी खत्म हो गया। तो हमारे यहाँ 93 में जब वहाँ लगाया तो अंबुजा नगर हो, फिर या राजस्थान बाद में लगाया हो, सब जगह हमें आज से 15 साल पहले टैंकर से पानी खास करके समर में कंपनी को टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़ता था, बाहर से टैंकर ला-ला के लोगों को पानी देना होता था। क्योंकि अदरवाइज़ वो फैक्ट्री नहीं चलने देते, बोले हमें पीने का पानी चाहिए। आज सिचुएशन ये है कि हमारे किसी भी लोकेशन पे हमें टैंकर सप्लाई नहीं करना पड़ा था। ये सबसे बड़ा एडवांटेज तो अनिकेत जी ने बोला था कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्या एडवांटेज? जहाँ आप इंडस्ट्री लगी है, यदि वहाँ के लोग भी संतुष्ट हों, तो और उनको भी उनकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो, तो इंडस्ट्री भी खुश और वो भी दोनों लोगों के लिए विन-विन सिचुएशन होती है। ये एक मैं बता रहा था, ये मैंने अभी ही डाला इसको स्लाइड में देख के कि इंडस्ट्री की भी बात हो रही है, तो मैंने डाला। ये एक अंबुजा का क्या कॉन्सेप्ट है? एक अंबुजा है, उसकी नीड क्या है? उससे प्लांट चलाना है, एनर्जी चाहिए, लैंड चाहिए वहाँ पे, रॉ मटेरियल चाहिए, माइनिंग करनी है, CO2 रिडक्शन एक है, लाइसेंस टू ऑपरेट चाहिए, स्टेक होल्डर की गुडविल चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? उनको लाइवलीहुड चाहिए, उनको भी पानी पीने का चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए, लाइवलीहुड चाहिए। वो भी चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री आई है, तो भी इंडस्ट्री के साथ-साथ हम भी ग्रो करें। तो हमारा जो मैनेजमेंट है या हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उनका एक थॉट है कि इंडस्ट्री के साथ हमें भी इंडस्ट्री ग्रो करे, हमारे साथ में आस-पास के लोग भी ग्रो करें, तभी रियल मायने में ग्रोथ है। तो ये मॉडल हम ये अंबुजा सीमेंट ने लिया हुआ है और इसी मॉडल के अंतर्गत दे इन्वेस्ट एवरी ईयर फॉर सोसाइटी और आज की डेट में आप कभी भी किसी भी मौका मिले, कभी भी आप हमारे वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं या किसी हमारे प्लांट लोकेशन पे जा सकते हैं। हमारे इतने कॉर्डियल रिलेशन हैं लोगों के कि हम अ, मतलब हमें उनके जो भी सोशल फंक्शन होते हैं, हमारे कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स जाते हैं। लेकिन आप कई इंडस्ट्री में देखेंगे, ऑफिसर बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते, ऐसी सिचुएशन है। तो इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते we must take care of the need of the our stakeholders
who live around our plants or manufacturing site or our office anywhere. अंबुजा का ये देखेंगे तो इनका अंबुजा कंपनी का एज ए कंपनी, मैं फाउंडेशन से हूँ लेकिन एज ए कंपनी का भी एक एक टारगेट है उनका कि हमको जितना पानी हमारी कंजम्पशन के या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए की चाहिए उसका कई गुना पानी हम सोसाइटी में देना चाहिए। तो ये वाटर क्रेडिट निकालते हैं हर साल। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। क्रेडिट कंपनी के विद इन द फेंस भी हो सकता है और कम्युनिटी में होता है, दोनों हैं। विद इन द फेंस जैसा कि उन्होंने बताया इससे प्रीवियस प्रेजेंटर में कि वो वाटर आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। और विद इन कम्युनिटी आउटसाइड द फेंस कम्युनिटी में करते हैं। तो अंबुजा का कम्युनिटी में बहुत बड़ा रोल है। हमारा कम से कम 60 मिलियन क्यूबिक मीटर स्टोरेज अभी तक हम लोगों ने क्रिएट किया है और एवरी ईयर वी इंक्रीज एटलीस्ट 2 to 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर एवरी ईयर। तो दैट इज द फोकस। तो ये हमारे कमिटमेंट है हमारी कंपनी का। और अंबुजा के साथ अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन नाउ डेज स्टार्टेड पार्टनरशिप विद अदर कॉर्पोरेट ऑल्सो, क्योंकि वी हैव दैट स्किल। तो हमने वो भी अभी स्टार्ट किया है। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट उसमें भी वाटर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेरा कुल मिला के हाँ आज का जो टॉपिक था वो यही था कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उन पे कैसे फोकस किया जाए, उनको कैसे हर गांव में। पुराना हमारा 500 साल पहला इतिहास बोलता है कि हमारे यहाँ 6 लाख गांव में 9 लाख वाटर बॉडीज। इसका मतलब हर गांव में 2-3 वाटर बॉडीज। यदि आप जो भी स्टूडेंट हैं अपने गांव में जाते हो, आसपास जाते हो, तो आप जाके गांव के आसपास देखेंगे जरूर आपको कोई ना कोई तालाब या कुछ ही कोई चेक डैम ऐसा मिलेगा जो कचरे से भरा पड़ा होगा। तो वो एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे कोई ग्रुप बना के लोगों को सेंसिटाइज करके कैसे उन चीज़ों के यदि वो सब हमारे देश में हो जाए तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारा कि हम अपने ग्राउंड वाटर रिचार्ज वाटर सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाएंगे, हमारी डिपेंडेंसी ग्राउंड वाटर पर रिड्यूस होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इसके साथ यदि विवेक जी टाइम है तो 3 मिनट की एक मूवी और है। ब्रिजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। I myself have been associated and visited the sites at Ambuja Cement. They are incredible and they are also water neutral. So Vijay ji, मेरा पहला सवाल है that we have many students from different schools and colleges participating. If anybody wants to visit the site, would that be possible? हाँ, yes, sure. Yes. So, पहले से if they can give the prior information, we will arrange any Thank- individual or any group. Thank you. Thank you. Brijesh ji, पहला सवाल है I think from Swati madam again. It is she's asking in terms of water literacy. She's saying that as you said that not many people are water literate. So how can we make people water literate, because people in rural and urban areas are well known of water scarcity and still they're wasting water. So what are the steps we can take? उनका question awareness point of view से है that we are seeing lot of people उनको water scarcity के बारे में पता है फिर भी they're not taking the right steps. तो उसका आपका क्या इरादा है? हाँ, तो मेरा यहाँ पे थैंक्स, अच्छा क्वेश्चन है और जो इसकी जरूरत भी है आज के समय में। बेसिकली वाटर लिटरेसी में हम बोल रहे हैं कि लोग पढ़े लिखे हैं और पानी की स्कैर्सिटी उन्हें पता है, लेकिन वो लिटरेट नहीं है क्योंकि हम पानी के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं है जो हमें करना चाहिए। जब हम अपने मैं बोलता हूँ इंडिविजुअली, आप ये मत सोचो कि दूसरों को कब आप ठीक करेंगे। इंडिविजुअली भी यदि हम सोच लें कि हमें पानी कितना, आप अपने घर में ही देखिए, स्टार्ट के सुबह बर्तन धोने वाली आती है उसी को देखिए कि आपके नल कैसे चल रहे हैं, कितना पानी जा रहा है। आप आपके गाड़ी जो वॉश करने आता है उसको देखिए वो पानी को कैसे यूज कर रहा है। आप अपने पड़ोसी में देखिए कि आप फ्रेश वाटर कितना गार्डनिंग में लगा रहे हैं। तो ये वाटर लिटर, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे घर में पानी आ रहा है तो सब जगह पानी है। तो स्कैर्सिटी की ऐसा लगता है स्कैर्सिटी लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ा है। अभी मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि कैसे करें। तो अंबुजा में जो हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली वो मैं
करता हूँ कि हम लोगों ने वाटर लिटरेसी पे पहले हम लोग भी एक मीटिंग करते थे, छोड़ते थे, लेकिन अभी उसको सिस्टमेटिक लिया है कि लिटरेट कैसे किया जाए। तो हम लोगों ने सेंसिटाइज करना शुरू किया है। सेंसिटाइजेशन मतलब हम गाँव में लोगों को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, क्योंकि हर गाँव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव हैं। ऐसे लोगों के ग्रुप बना के और फिर उनको जो भी थोड़ा बहुत और टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए या अ, कुछ और फैक्ट्स चाहिए, क्योंकि डेटा के साथ बोलें तो थोड़ा अच्छा होता है। जिसमें हमने महिलाओं को भी आइडेंटिफ़ाई किया है, उसमें जेंट्स भी हैं, इवन स्कूल टीचर हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, जिनको आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है, और उनको थोड़ा-सा एक वाटर के थोड़ा-सा हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ये साइकिल, वो साइकिल, इन सब की चीज़ें जिससे कि फैक्ट के साथ बोलें। तो ल केवल एक ये तो हो गया कि सिचुएशन क्या है उसके बारे में, अपने ट्रेडिशनल सिस्टम क्या हैं उनके बारे में, और कैसे वो पता कर सकते हैं कि कोई सिस्टम है तो वो कैसे डिफंक्ट पड़ा है उसके बारे में। तो ये लोग कंटीन्यूअसली अपने ग्रुप्स में मीटिंग करते हैं। चाहे बच्चे हों, वो अपने घरों में जाकर करते हैं। जो हमने महिला वॉलंटियर्स बनाए हैं, जिन्हें हम कई जगह भूजल जानकार बोलते हैं, कई जगह सखी बोलते हैं, मतलब अलग-अलग हैं। ये लोग जाके सोसाइटी में कोई भी मीटिंग करते हैं तो पानी की पहले बात शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ पानी, और एग्जाम्पल दे के बात करते हैं। मान लो कई गाँव में हम जाते हैं कि वो टूटे पड़े हुए नल, तो वो अपना ग्रुप बना के वहाँ ले जाते हैं, और ग्रुप बना के ले जाके दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारे यहाँ आप बोलते हो कि पानी की कमी है, देखिए नल का वाटर टैंक जो बना है उसका नल टपक रहा है। अब वो मेजर करके बताते हैं लोग, बाल्टी ले जाके रखते हैं, 10 मिनट बैठालते हैं, देखो कितना पानी गया इसमें। तो ऐसे करके छोटे-छोटे इंटरवेंशंस हम लोग विलेजेस में कर रहे हैं, छोटे-छोटे ग्रुप बना के। और वो ही मेरे को लगता है करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम कोई उसका कैरिकुलम बना के ट्रेनिंग करा दें तो वो शायद ऐसा, तो ये हम लोग कर रहे हैं ये व्यक्ति। Thank you, Vijay ji. और 2 questions more and ये 2 सवाल के बाद we can move on to the 3-minute film. पहला सवाल प्रतीक साय से है कि with good things being done, why is it there isn't any media coverage for Ambuja Cement? तो इस बात पे क्या आपका राय है? मतलब मैं समझ नहीं, मीडिया कवरेज है कि नहीं है? हाँ, yes, media coverage. हाँ, तो विवेक जी, इसके लिए मीडिया कवरेज के लिए बेसिकली हमारे ऑफिस में पूरा एक कम्युनिकेशन टीम है इसके लिए। जो फाउंडेशन का नहीं है, फाउंडेशन का सोशल वर्क है, लेकिन कंपनी का कम्युनिकेशन टीम है, फाउंडेशन में भी एक आदमी है उसका। तो हम टाइम-टाइम पे इनकी मूवी बनाते हैं या केस स्टडीज़ बनाते हैं, तो वी सर्कुलेट इन And I इट्स think मीडिया। just हाँ? to answer the question also, Ambuja Cement has sustainability reports and CSR reports जहाँ पे उनका या काफी काम is highlighted, so you can get them off through the web. एक और सवाल है यस। in terms of urban areas, केविन का सवाल है कि contaminated water in urban areas filled with lot of debris, तो contaminated water in rural areas different रहता है और urban areas में different रहता है। तो urban areas में अगर अपने को treat करना है the contaminated water filled with debris, तो उनका right strategy क्या रहेगा? नहीं, स्ट्रेटजी तो क्योंकि अर्बन में आपने पूछा है, रूरल में ठीक है हम कर दें, लेकिन देखिए बेसिकली इसमें टेक्नोलॉजी एक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन मैं तो जो बात अवेयरनेस की कह रहा हूँ कि कंटेमिनेशन जो है, Correct. तो वो उसका सोर्स क्या है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं अवेयरनेस लेवल। वो टेक्नोलॉजी की बात है, वो गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई प्राइवेट एजेंसी के पे वहाँ पे काम कर रही हैं कि उनको कैसे उस कंटेमिनेशन को कैसे रोका जाए, क्योंकि कई सारी जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थी जो फ्रेश वाटर स्टोरेज के लिए थी, लेकिन अभी उनमें सीवेज वाटर ये सब डाइवर्ट कर दिया। तो वहीं तो मैं बोल रहा हूँ कि वहीं सेंसिटाइजेशन चाहिए ना, कि हम प्लास्टिक है कहीं भी फेंक देते हैं, हम पढ़े Correct. लिखे हैं, कार में से खा के, और कार में से 18 लाख की गाड़ी जा रही है, उसके विंडो से हम प्लास्टिक फेंकते हैं बाहर रोड पे। तो वो ही तो अवेयरनेस चाहिए लोगों में। तो Correct. वो एक है, बाकी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं कि हम जहाँ पे भी ये वाटर बॉडी है छोटे ग्रुप में जाके अवेयरनेस करें और बोलें कि भाई ये वाटर बॉडी है फ्रेश वाटर के लिए, इसमें कैसे फिल्टर लगाया जा सकता है कि उसमें जो पानी जा रहा है वो कम से कम फिल्टर होके तो जाए, तो धीरे-धीरे वो रिचार्ज होता है गंदा पानी भी, ये तो भी। ठीक है वो ब्रिजेश जी, सब है। you can move ahead with the presentation. Thank you. हाँ ब्रिजेश जी।
हाँ, तो मेरा यही था विवेक जी कि उसमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं बहुत सारे, लेकिन सोशल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं मानता हूँ कि एक सोशल लेवल पे, चाहे वो अर्बन हो, अर्बन हो तो मैं जानता हूँ और जल्दी से अवेयरनेस आनी चाहिए। तो लोगों को भी थोड़ा-सा केवल हम सरकार पे डिपेंड रहेंगे, ये रहेंगे तो आपको पता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सरकार का रिसोर्सेस लिमिटेड हैं डेफिनिटली। तो कहीं न कहीं हमें समाज को और लोगों को इसमें कुछ कलेक्टिव एफर्ट्स करना चाहिए। सबसे पहले उसको सोर्स को रोका जाए कि कंटामिनेशन कहाँ से रुक सकता है। Thank you, Brijesh ji. Thank you very much.